مسیح میں آپ سب کو سلام۔ سلام جی۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت پیدائش کی کتاب اس کا 35 باب اس کی 16 آیت سے لے کر 19ویں آیت تک تلاوت کی جائے گی۔ پاکلام میں کچھ یوں لکھا ہے، اور وہ بیتیل سے چلے اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راحل کے درد زر لگا اور وضع حمل میں عنایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، ڈر مت، اب کہ بھی تیرا بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام نبونی رکھا اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راحل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستے میں دفن ہوئی۔ پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ پیدائش کی کتاب اس کا 35واں باب 16ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک آپ نے کلام پاک کی تلاوت کو سنا۔ ابھی ہم اس کی تشریح سنیں گے الفاظ، آسان الفاظ میں۔ آج کے پیغمبر کو میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اکثر و بیشتر اس پرپٹ سے خداوند کے زندگی بخش کلام کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی میں ان کو دعوت دوں گا، پادری ساجد عظیم صاحب آپ کی تالیوں کی گونج میں وہ آئیں اور خداوند کے زندگی بخش کلام کی خدمت کریں۔ تھینک یو علی صاحب۔ آئے ہم چند لمحات کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے باب آسمانی، ہم تیری بے حد شکر گزاری کرتے تیری ساری دی ہوئی نعمتوں کے لیے۔ اے باپ، تیری منت چاہتے کہ تو ہمارے تمام تر بکھرے ہوئے خیالات کو یکتا کر، اور اے باپ ممکن کر کہ ہم تیرے کلام کی عمیق بھیدوں کو جان سکیں۔ اے باپ، آج کی شام ہم کثرت کی برکت پا کے جائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ دنیا کے نیاب موتیوں میں سے یا نیاب اشیاء میں سے پرل، یعنی وہ موتی جسے ہم سچا موتی بھی کہتے ہیں عام زبان میں، یا پھر مدر پرل بھی اسے کہا جاتا ہے، اکثر اوقات جویلری کے اندر، زیورات کے اندر خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ ہم سبوں کو یہ موتی بہت پسند آتا ہے، اور خاص طور پر خواتین اپنے زیورات کے اندر اسے جرانا اپنے لیے خوشی اور مسرت کا باعث سمجھتی ہیں۔ کئی ایک بادشاہوں کے تاج کے اندر اور آج کئی ایک ملبوسات کے اندر بھی اس پرل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ طب کے شعبہ کے اندر بھی اکثر و بیشتر اس پرل کا استعمال، موتی کا استعمال لوگ کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس کی چمک اور خوبصورتی کے پیچھے کے سارے پروسیس کو میں اور آپ جانتے ہیں؟ آج کی شام اس سے قبل کہ ہم کلام کی تشریح پر جائیں، میں چند لمحات اس کے پروسیس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ یہ موتی فارم کیسے ہوتا ہے۔ پہل بارش کا ایک قطرہ سمندر کی تہہ کے اندر ریت کے ذرات کے ساتھ مل کے سمندر کے اندر چلا جاتا ہے، اور سیپی جسے ہم کہتے ہیں سیپ شیل، اس کے اندر یہ موتی یا یہ ڈراپ جو ہے، رین ڈراپ، یہ گر جاتا ہے۔ اور گرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سیپ کا جانور یا شیل جو ہے وہ اپنے آپ کو کلوز کر لیتا ہے، بند کر لیتا ہے۔ جو ہی یہ شیل بند ہو جاتا ہے تو سیپ کا یہ جانور جو کریچر اندر موجود ہے اسے بہت زیادہ کرب کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے۔ وہ سٹرگل کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس قطرے کو، اس بارش کے ڈراپ کو اپنے اندر سے باہر نکال دے، تاکہ یہ جو ریت کا ذرہ ہے اس سے جو اسے انکمفرٹیبل سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے
उससे वो निजात पा जाए और बिलाहिर वो इससे फेमिलियर हो जाता है और अपने लाभ के साथ यानी अपने थूक के साथ उसे सेचना शुरू कर देता है, उसके गिर्द कोटिंग करना शुरू कर देता है और कोटिंग करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि ये मोती जो हमें देखने में खूबसूरत लगता है वो फॉर्म हो जाता है और सीप का ये जानदार जो है, इसके अंदर जो क्रिएचर मौजूद है वो अपनी जान दे देता है यानी मर जाता है और सीप खुद ब खुद खुल जाता है और हमारे पास मोती आ जाता है। मैं और आप कभी भी इस प्रोसेस पर नजर नहीं करते, हमें सिर्फ इस मोती की चमक देखने को मिलती है, लेकिन उससे पीछे जो इतनी दर्दनाक सिचुएशन है, जो स्ट्रगल है, उससे मैं और आप वाकिफ नहीं होते हैं। आज की शाम मैं इसी स्ट्रगल के ऊपर बात करना चाहूंगा, जिससे अक्सर औकात जब मैं और आप बतौर इंसान गुजरते हैं और खुदा हमसे बेहतरीन नताइज लेना चाहता है, जब खुदा चाहता है कि हम दुनिया के लिए चमके, उसका नूर बन के, तो हम अक्सर औकात घबरा जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम इसके साथ कंफर्टेबल सिचुएशन पैदा करें, हम बल्कि दम तोड़ देते हैं इससे पहले कि हम रिजल्ट्स लेकर आए। आज की शाम पढ़ा गया हवाला बहुत इंटरेस्टिंग है। होता यह है कि राहल जो है वो पहले औलाद को जन्म दे चुकी है, लेकिन अब की बार सिचुएशन फर्क है। वो कर्ब की हालत में है, वो दर्द में है और दर्द के दरमियान में ही उसकी वफात भी हो जाती है। लेकिन वो दर्द के इस आलम में अपने इस बेटे को, इस बच्चे को जो जन्म लेता है, उसका नाम नबूनी रखती है, यानी दर्द का बेटा। इब्रानी जुबान में जिसका मतलब है दर्द का बेटा या दर्द से जना गया बेटा, या पेन, डिस्कंफर्ट या कर्ब, मुश्किल में जन्म दिया गया कोई चीज। वो सिर्फ और सिर्फ अपने तजुर्बे को नाम देती है और अपने इस बच्चे को भी दर्द का बेटा कहकर वफात पा जाती है। लेकिन वहीं इस बच्चे का वालिद जानता है कि ये उसके लिए एक ब्लेसिंग है, इसीलिए वो उसका नाम बिन्यामीन रखता है, यानी मेरे दाहिने हाथ का बेटा। दाहिना हाथ पुराने अहदनामे में बरकत के लिए इस्तेमाल हुआ हमें होता हुआ नजर आता है। दाहिने हाथ को अक्सर औकात बरकत के लिए इस्तेमाल किया गया है, किसी को ब्लेस करने के लिए, किसी को मखसूस करने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल हम देखते हैं। और हमें यहां पर नजर आता है कि वो अपने बेटे का नाम बिन्यामीन रखता है, यानी मेरे दाहिने हाथ का बेटा, यानी ब्लेसिंग। हम अक्सर औकात अपनी जिंदगियों के अंदर ये तजुर्बा करें तो हम देखते हैं कि हम अपने डिस्कंफर्ट को, अपने दर्द को नाम देना चाहते हैं। हम जब मुश्किलात से गुजरते हैं, हम किसी भी तरह का मुश्किल तरीन नाम उसको देना चाहेंगे। हम फर्क तरीके से अपनी सिचुएशन को कहेंगे कि यह हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक खुदा की तरफ से लानत है। और हम उस डिस्कंफर्ट को खुदा ने जो हमें ब्लेसिंग के तौर पर दिया होता है ताकि हम ग्रो करें और खुदावंद की तमजीद करें, हम वो नहीं देख पाते। लेकिन हमारा बाप जानता है, जिस तरह यहां बाप जानता था कि दिस इज द ब्लेसिंग नॉट ए कर्स। ये कर्स नहीं है, ये लानत नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगियों में खुदा ने एक बरकत को कायम किया है। इसीलिए वो इसका नाम बिन्यामीन रखता है, ताकि दुनिया जाने कि खुदा ने उनको किस तरह से ब्लेस किया है। राहल अगरचे अपनी बदनी हालत को देखते हुए, अपने कर्ब को देखते हुए, अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए इसका नाम दर्द का बेटा रखती है, नबूनी रखती है। लेकिन वहीं हमें नजर आता है कि वो उसका नाम बिन्यामीन रखता है। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों के अंदर भी
बारहा ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी हालत को, अपनी तकलीफ को, अपनी मुश्किल को गिलों में तब्दील कर कर, लानत समझकर उसको कर्ज के तौर पर लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि आज की शाम हम ये अपनी जिंदगियों के अंदर देखें और उसका तजुर्बा करें कि खुदावंद हमें किस तरह से वो ब्लेसिंग से भी मुतारिफ करवा रहा है। अगरचे हमारे हालात इतने साजगार ना हो, अगरचे हम किसी डिस्कम्फर्ट के अंदर हो, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट हमारे लिए ब्लेसिंग को जन्म दे सकता है। एक और चीज अगली आयत में हमें मिलती है। 19वीं आयत के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि राहल मर गई और उसे अफरात यानी बैतलहम के अंदर रास्ता जो है वहां पर उसको दफन किया जाता है। मेरे अजीजों, मैं और आप कितने लोग हैं जो बैतलहम को आज राहल की कब्र के तौर पर जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं जानता होगा। हम सिर्फ और से खुदा की पैदाइश की जगह के तौर पर जानते हैं। आज वो एक ब्लेसिंग की जगह के तौर पर जानी जाती है। What had happened, आपके पास्ट के अंदर क्या हो चुका है, आज आप किस सिचुएशन में हैं, कोई इसको याद नहीं रखेगा। आज आप किसी भी हालत में हैं, आप कर्ब में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप मुश्किलात के अंबार में हैं, आप तकलीफों में से गुजर रहे हैं, आप बीमारियों में हैं, कल कोई इसको याद नहीं रखेगा। याद रहेगा तो वो बरकत जो खुदावन के वसीला से आपकी जिंदगियों के अंदर कायम रहेगी। खुदावन आपकी इन मुश्किलात को बरकत में बदलने की कुदरत रखता है और वो ऐसा करने में कादिर है। वो लानती मौत को भी बरकत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। जब वो मेरे और आपके लिए सलीब पर मुआ तो उसने लानती मौत को भी ब्लेसिंग बना दिया। दैट्स द गॉड वी नो। ये वो गॉड है, ये वो खुदा है जिसे मैं और आप जानते हैं, जो मुश्किलात को बरकत में बदलने की कुदरत रखता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा शख्सी इंसानी रवैया कैसा होता है। क्या हम उस मुश्किल वक्त में खुदा के अगेंस्ट बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, या उसको ब्लेसिंग समझकर, उसको खुदा की देन समझकर, उसमें साबित कदम रहकर, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलकर अबदी ताज के हकदार ठहरते हैं। यह एक मुश्किल अमल है, लेकिन जब हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद को ले लेते हैं, जब हम अपनी जिंदगियों में उसकी कुर्बत को मांग लेते हैं, जब हम अपनी जिंदगियों में उसकी सलीब और उसके मसा को मांग लेते हैं, जब हम अपनी जिंदगियों में उसकी मोहब्बत को कायम कर लेते हैं, जब हम अपनी जिंदगियों का दारोमदार उससे बना लेते हैं, जब हम उसकी लहू को अपनी जिंदगियों में मांग लेते हैं, और जब हम उसके सच्ची और हकीकी पैरोकार बन जाते हैं, जब हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, जब हम उसके हकीकी मानों में बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो हम हर मुश्किल में गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शायद इस दाइया की तरह हमें किसी को यह कहना नहीं पड़ेगा कि डरो मत, तुम अब भी ब्लेसिंग्स लेकर आओगी या लेकर आओगे। हमें खुद ही पता होगा कि खुदावंद का पहला पैगाम मेरे और आपके लिए यह है, डरो मत। आज मसीह मुझसे और आपसे यही कह रहा है, डरो मत। अगर आज आप मुसीबत में हैं, गम की हालत में हैं, किसी खौफ में मुब्तला हैं, किसी बीमारी में हैं, दिस इज द टाइम जब खुदा आपकी उस बीमारी को, उस तकलीफ को ब्लेसिंग में तब्दील करने की कुदरत रख रहा है। बट एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मेरा और आपका एटीट्यूड क्या होता है। आर वी गोना एक्सेप्ट गॉड्स विल इन आवर लाइफ्स? हम उसकी मर्जी को
मनोअन मान लेते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ गिला करते हैं। और जब हम गिला करते हैं तो यकीन जानिए हमसे हमारी मौजूदा ब्लेसिंग्स भी हमसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि खुदा हमसे तकाजा करता है कि हर हालत में उसकी शुक्रगुजारी की जाए। और मसीह का दिया हुआ कफारा हमें इस बरकत को हासिल करने में हमारे लिए आसानी को पैदा करता है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से इस बरकत को हासिल करते हैं। आप अपनी इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को दर्द का नाम देते हैं या फिर आप इसे अपने लिए ब्लेसिंग्स का नाम देते हैं और खुदावंद के हजूर सिजदा रेज होकर उसे कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी पूरी हो। जिस तरह मरियम ने किया, वो सर्कमस्टांसेस को नहीं जानती थी कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। वो ये ज़रूर जानती थी कि दुनिया उस पर थूकेगी और उस पर लान तान भी होगी, क्योंकि वो किसी मर्द से वाकिफ़ नहीं थी। लेकिन वो फरिश्ते को यही कहती है, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। आर वी गोना एक्सेप्ट गॉड्स ब्लेसिंग? क्या हम तैयार हैं खुदावंद की बरकत को हासिल करने के लिए? वो किसी भी शेप में हो सकती हैं, वो ट्रायल की शेप में भी हो सकती हैं, बट आवर एटीट्यूड मैटर्स। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ए बाप आसमानी, हम तेरी बेहद शुक्रगुजारी करते हैं बाप, तेरी दी हुई सारी नेमतों बरकतों के लिए। ए बाप, तेरे हजूर आते और तेरी मिन्नत चाहते हैं कि ए बाप तो हमारे कर्ब को, हमारे डिस्कम्फर्ट को, हमारी अनसुटेबल सिचुएशंस को बदल दे। अब आप हमें वो दिखा जो तू हमें दिखाना चाहता है, और जो इन सिचुएशन से तू हमें सिखाना चाहता है, हमें साबित कदम रहने की तौफीक बख्श। अब आप दुनिया के इस कर्ब के अंदर हम तेरी सलीब की जानिब देखते हुए अब आप अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। और अब आप जिस तरह तू हमारे साथ साथ चलता है, हम भी तेरे साथ साथ चलें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो पादरी साहब की मार्फत हम तक पहुंचा है। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम मुश्किलात में भी उसकी ब्लेसिंग के मुतलाशी रहें। पादरी साहब जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ज़बूर गाएंगे।